ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಐಕೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕರು ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಗೈದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಯುವತಿ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪೈಲಟ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ. ಈ ಯುವತಿಯ ಹೆಸರು ಸಮೈರಾ ಹುಲ್ಲೂರು ಅಂತ. ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಮೈರಾಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ. ಸಮೈರಾ ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಮೈರಾ ವಿಜಯಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. The youngest pilots of the country, and I am right now 18 years old. I feel that while I was doing it, the only thing I did was being sincere with my hard work, and I was disciplined about my flying. But I'm grateful to get the topic. I'm grateful to be able to be amongst the youngest pilots of the country, and it feels that I have got a great platform now. I can inspire a lot of people, so I'm very grateful for that. आजकल के ज़माने में दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, बट आई फील कि हम लोग को वो सब पीछे छोड़ के वी शुड ट्रीट ईच अदर इक्वली. हम लोग के लिए कुछ अलग से इस फील्ड में नहीं होता. वी आर ट्रीटेड द सेम, स्पेशली बिकॉज in the cockpit the seat doesn't know if it's a female pilot or a male pilot. That is the reason we are only called pilots, and there's no male and female version of it. So I hope that someday in the country as well, all the professions are known with just one name, and then there's no bifurcation of sorts, and that would be very nice if that happens. My family consists of my grandparents, Dadu Dadi, my parents, and I have a younger sibling who's now in 8th standard. So this is my family. My family members are very proud of me. I can see it in their eyes, क्योंकि वो जब भी किसी से बात कर रहे हैं about me, and especially my grandfather, he's started addressing me as Captain Samaira Hullur now, so that feels very nice. And even my parents, when they're talking about me to anyone, उन लोग के आँखों में एक अलग चमक दिख रही है आजकल, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल. आपके मम्मी पापा का क्या सपना था, क्या बनाना चाहते? मम्मा पापा का ही सपना था कि मैं पायलट बनूं. तो मैं तो बस हाई स्कूल में थी. आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल टीनेजर, एंड दे प्रपोज्ड मी, स्पेशली माई मदर. शी वॉज वेरी फैसिनेटेड विद पायलट्स. तो उन्होंने ही मेरे को इंट्रोड्यूस किया इस फील्ड को कि दिस इज़ अ वेरी nice option, and she showed me their lifestyle, and I came across Captain Tapesh Kumar, and I used to watch his videos, and that is where I was inspired. ऐसे पेरेंट्स के लिए बस मेरा यही एक चीज़ है कि जब तक आप बच्चों को सपोर्ट नहीं करोगे, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. Even if we take my case, if my parents had not supported me, I would have become pilot at some point, but then I would have not been able to become the youngest pilot amongst the youngest pilots. So that the kids need your support the most. Even if they are doing something that they like, you just have to support them, and that's it. They'll be able to do great things in life. Yes, all the people of the city, all my batchmates, everyone has been congratulating me. My phone, I have to put it on silent when I'm sleeping because of all the notifications, and yeah, everyone's showering me with lots of love, and I'm grateful for that. आपकी फैमिली में कोई था ऐसा पहले? नो सर, मेरी फैमिली में एविएशन फील्ड से ही कोई नहीं है. एंड इवन इन द सिटी मैंने बस 3 पायलट्स का नाम सुना था जब मैं ट्रेनिंग जाने वाली थी. सो
कुछ कोई कनेक्शन नहीं था किसी के पास, सो इट वाज क्वाइट हार्ड टू फाइंड एवरीथिंग विच वुड हेल्प मी ग्रो. I feel कि unless and until you don't invite the problem, there won't be any problem. Because I stayed in Delhi for over 6 months और मैंने ऐसा कोई incident face नहीं किया. Because the only thing I used to do was go to the class, come back and कभी कभी कुछ entertainment के लिए movies जाओ. So that was the only thing. I never went to the clubs. So yeah, unless you don't invite problems by yourself, there won't be any problem to you. क्योंकि आपकी उम्र में घर के बाहर नहीं बसते बच्चे, उनको तो आप प्लेन उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक चलाना भी मुश्किल है बीजापुर के माहौल के हिसाब से हम देखें. Yes. आपको कैसा महसूस हो रहा है? Like I said, I'm very grateful for the opportunity and मैं जब भी प्लेन में बैठती हूँ तब मेरे को लगता है कि all the problems, whatever problems are there, those are on the ground, and the only thing I have to do is fly the aircraft safely and take the responsibility and become responsible for the 200 passengers which I'll be hopefully carrying with me as I grow in the airline as well. So yeah. जब मैं ट्रेनिंग को जा रही थी स्टार्टिंग में देयर वर लॉट्स ऑफ डाउट्स, स्पेशली द इनिशियल 3-4 months. That was the time when I was very much in doubt about if I'm doing good, if I'm able to do it, if I'm able to cope up with the flying, if I'm able to sharpen my skills, because flying का बेसिक्स सब लोग सीख जाते हैं कुछ टाइम बाद, बट उसको मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है. सो इट वाज क्वाइट हार्ड फॉर मी एज वेल. Samaira has become the youngest pilot. बीजापुर से बहुत ही कम लोग पायलट बने हैं, उसमें भी जैसे यंगेस्ट फीमेल पायलट पता लगा तो ये पता लगा कि ये हिंदुस्तान की जो है यंगेस्ट पायलट है. ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का एक अचीवमेंट वो कर पाएगी इतने कम एज में. दैट्स एन प्राउड फीलिंग. एक बहुत अलग टाइप का माहौल है घर में कि सभी लोग जो है बहुत खुश हैं उसके अचीवमेंट से. ऐसा है कि पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इसमें जो है हम लोगों का ऐसा डिसीजन था जब भी कोई मतलब घर में कोई कहता कि नहीं जाना है, कोई कहता कि हाँ जाना है, तो एक दूसरे का सहारा बनते हुए हम लोगों ने एक डिसीजन फाइनली लिया कि उसको भेजना ही भेजना है. ऑफ कोर्स एक अचीवमेंट करने के लिए कोई सेक्रीफाइस देना पड़ता है, बच्ची को थोड़ा सा दूर भेज के ये था, लेकिन प्री कैलकुलेटेड रिस्क्स रहते हैं. तो अगर इंसान समझ जाता है कि कहाँ पे कैसे जाना है, क्योंकि हम लोगों का बहुत स्टडी हुआ, हम लोग हर जगह गए, कौन सा स्कूल उनको डालना है, कहाँ पे उनका सेफ्टी देखना है. विनोद यादव को हम लोगों ने चूज इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे से हॉस्टल की दूरी कितनी थी, तो ये सब कुछ स्टडी करना होता है पेरेंट्स को. तो वी टुक द कैलकुलेटेड रिस्क. ऑफ कोर्स यस, वी डिड इट. मैसेज यही है, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है. बस इतना है कि वो पहले से चलता आया है कि बेटी को जरा कमजोर नजर से देखते हैं, लेकिन अभी तो मुझे तो ऐसे फील हो रहा है क्योंकि इतने दिन से जो है उसको जो है मेरी बेटी समझते थे. अभी सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही जो है सभी लोग जो है समायरा के पापा कह रहे हैं. तो इससे बड़ा प्राउड फीलिंग और क्या हो सकता है कि एक पेरेंट को ये फीलिंग बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक पेरेंट के लिए. तो बेटी और बेटे में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, तो बेटियां तो और ज़्यादा पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं आगे. 1-2 इंसिडेंट हुए हमारे यहाँ, जैसे हम लोग कहते हैं बीजापुर का नवरसपुर उत्सव है, वो उत्सव का प्रेरणा ऐसा होता है, रणदीप देव थे डीसी साहब, तो उस टाइम में जो है वो हेलीकॉप्टर राइड बोल के कुछ आया था, तो वी हैड टेकन दैट टिकट्स. तो जब वो छोटी सी बच्ची थी तो वो पायलट को देख के वहाँ इंस्पायर हुई. तो फिर 2-3 बार हम लोग कहीं आउटिंग के लिए जब गए तो प्लेन में गए, तो वहाँ से वो पायलट्स का इंस्पिरेशन आया. तो यही एक इंस्पिरेशन था वेर इन दे डिसाइडेड, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी भी वैसी ही थी, शांत थी. कोई कंसंट्रेशन वाला कोई काम हो तो
मैं एटीसी बनना चाहूँगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। उसके प्लेन को लैंड करने नहीं दूंगा, क्लियरेंस। मेरी बेटी को पायलट बनाना था, उसने अच्छे से पढ़ाई की और उसने पायलट बन के दिखाया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड ज़्यादा खुशी ये है कि वो बीजापुर और कर्नाटक का भी नाम रोशन कर रही है, साथ साथ में हिंदुस्तान की बेटी कहलवा रही है, तो वो ज़्यादा खुशी दे रहा है मुझे। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कोई घर के बाहर नहीं भेजती बच्चों को, तो ऐसे माहौल में वो प्लेन उड़ा रही है तो वो कैसा लग रहा है? मुझे लगता है हमको बच्चों को प्रिपेयर कराना है। हम हाथ पकड़ के चलना तो सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी हाथ छोड़ के चलना भी सिखाना ज़रूरी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनकी लाइफ उनको ही जीनी है। फिर भी बेटर माहौल चेंज हो रहा है, अभी पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं लड़कियों की पढ़ाई में भी, बट हाँ, दोनों को पढ़ाना ज़रूरी है, लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाना ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कहते हैं एक लड़के को पढ़ाने से सिर्फ एक इंसान को आप एजुकेट कर रहे हो, लेकिन एक लड़की को जब आप एजुकेट कर रहे हो तो एक पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हो। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लड़की को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यहाँ मत जाओ वहाँ बचाओ, रोक टोक बहुत होती है लड़कियों को, लड़कों को नहीं होती। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या है? रोक टोक तो सही है, क्योंकि वो डर जायज़ है। माहौल भी आसपास ऐसे है, ऐसे न्यूज़ में इंसिडेंट्स बहुत बुरे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, तो वो डर स्वाभाविक है। बट आप अपने बच्ची, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को सिखाइए कि लड़कियों को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। लड़कियों को तो हम मना कर देते हैं, लेकिन लड़कों को भी ये सिखाना ज़रूरी है कि अगर वो लड़की शाम में या और टाइम पे लड़की देखते हैं तो उनको वो रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो पायलट बनाने का ये किसका था प्लान, आपका था क्या? फर्स्ट तो मेरे ही दिमाग में आया था कि पायलट बनाऊं। एक्चुअली पायलट ही बनाना ऐसा नहीं था, बट कुछ अलग फील्ड अपनी बच्ची के लिए ढूंढना था। तो हाँ, मेरी बच्ची को एक अलग करियर देना था, एक हटके करियर देना था, तो वी एंडेड अप विथ पायलट। बीजापुर के लिए, पेरेंट्स के लिए यही मैसेज होगा मेरा, आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट देख के, आपके पॉसिबिलिटीज़ देख के उनके लिए बेटर करियर चूज़ कीजिए, उनके कैपेबिलिटी, उनके विश के हिसाब से। बहुत खुशी है कि मेरी बहन वन ऑफ द यंगेस्ट पायलट है इंडिया में, पूरे भारत में सबसे छोटे में से थोड़े है दीदी मेरी एक। तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं एटीसी बनना चाहूँगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। उसके प्लेन को लैंड करने नहीं दूंगा, क्लियरेंस। तो अभी आपकी बहन आपसे आगे निकल गई, ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि बहन भाई में कभी भी कंपटीशन रहता है। हाँ, बट मुझे आगे गई हो खुशी मिल रही है। थोड़ी देर के लिए फिर बांध में लैंड करने दूंगा। तो सताएंगे वहाँ पर भी थोड़ी हाँ, नजर आएगी आपको। हाँ। और बहुत सारे बहन भाई हैं बीजापुर में, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आपने क्या क्या सपोर्ट किया अपनी बहन को? सपोर्ट में हमेशा से ट्राई करता था कि उसको खुश रखूँ, मतलब ट्राई सपोर्ट करने का करता था, वो इतना ही करता मैं, ज़्यादा मम्मी पापा करते सपोर्ट्स। तो बहन भाई जो रहते हैं ना, उनके बीच में सिर्फ झगड़ा देखने को मिलता है, तो आप भी झगड़ा करते होंगे? बहुत पहले करता था, अभी नहीं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर करते हैं, तो भाई जो है बहन का सपोर्ट है, तो आपका आगे चल के क्या सपोर्ट है उनका? मैं हमेशा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे। तो दूसरे बहन भाई के लिए आपका क्या मैसेज है? दीदी को हमेशा प्यार से पास में रखो, कहीं जाने मत दो। मुझे ये लग रहा है खुशी तो बहुत ही होना चाहिए, क्योंकि अपने घर में अगर बच्चे अच्छा पढ़ के रैंक में आके और नाम कमा के मार्क्स अच्छा लेके आते हो तो हम लोग इतना खुशी मनाते थे हमारे बच्चों के लिए। हम वो खुशी, अब उसके डबल खुशी आज हुआ है, जो कि पोती ने समेरा, पायलट समेरा बन गई। अभी पायलट यानी मतलब कैप्टन समेरा बनी। ये हम सुनने के बाद में हमें बहुत इतना खुशी हुआ कि हम हमारे घर में सभी लोग वही सोचे कि चलो हमने एक इरादा क्या किया था, आपसे बता रहे हम हमारे बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में इसलिए डाला था कि वहाँ कुछ न कुछ बने। तो वो हमारे मतलब फर्जन अमीनुद्दीन वो पूरा करके दिखाया हमें अपनी बेटी को ये पायलट बनाने के बाद में। हमें बहुत खुशी हुई और सबसे हमारा यही एक तलब है कि अपने बच्चों को उनको थोड़ा इनकरेज कीजिए और अच्छा पढ़ाइए। लड़का और लड़की मत देखिए, क्योंकि मैं मेरे घर में मेरे ख्याल से मेरी मम्मी में हम अनपढ़ हैं
और बाकी के जितने में है ना सब एजुकेटेड हैं, क्योंकि अभी हम इतने सालों से देखते हैं कि आदमी को और औरत को अलग अलग देखते हैं नहीं, हम हमारे घर में हम लोग कैसे सोच है वैसा अभी सभी भी एक ही समझो, लड़का हो या लड़की, ये दोनों को भी अच्छा एजुकेशन देना और अच्छा पढ़ाना और उनको इनकरेज करना। और ये चीज जो अगर हम लोग फाउंडेशन करेक्ट होना चाहिए घर में, पहले चारों फाउंडेशन सही नहीं है तो बिल्डिंग हिल जाएगी। अगर फाउंडेशन अच्छा है तो बस काय का डर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या बोलते हैं कि जब तक के आप हैं उससे डरो, दूसरी दुनिया से डरना नहीं, डरना है तो ऊपर वाले से डरो। और दूसरी बात, आप अपना काम, हमारे बीजापुर में बसवण्ण का ये है, कैसे है बोले तो कायकवे कैलासा, ಕಾಯಕವೇ ಕೆಲಸ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ। ये मेरा ख्याल है कि हमें बहुत खुशी हुई, हमारे घर में हमारे बहू और बेटा और पोता, वो इतना खुशी हुई कि हम दादा और दादी रोने लग गए हम, क्योंकि आंख में आंसू आ गए हमको कि इतना खुशी हो गया कि हमारे अहिल्या यानी मिसेस भी पोस्ट में काम किए हैं, वो भी एजुकेटेड हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा कि कभी मैं एजुकेटेड नहीं हूं, उनसे ज्यादा मैं एजुकेटेड हूं, सभी लोग यही सोचते हैं। ये आज मुझे बहुत फख्र हुआ। और हिंदुस्तान में पायलट समेरा बनी है, और उसके साथ साथ हमें सभी लोगों को, हमारे बीजापुर के लोगों को अपने अपने बच्चों को अच्छा सिखाइए, पढ़ाइए, और यही मेरा इल्तिजा है। हाँ, एक बात आप बता रहे बराबर, यहाँ प्लेन का नहीं था, लेकिन माहौल चेंज होने के बाद, दिन चेंज यानी आगे जैसा डेवलप होता है, तो आज हम ये सोच रहे थे कि हमारी पोती पायलट बन के आई। अरे वो 2 बार अगर यहाँ प्लेन लेके आई, बीजापुर में एयरपोर्ट भी बन गया है, आज किसी को वो सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अभी चंद दिनों में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। डीसी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट टाइम हमारी बेटी को लाके उतारेंगे यहाँ, पोतरी को। हम ये सोचते हैं कि क्यों नहीं, हम कोशिश करना चाहिए। हम कभी सोचे भी नहीं थे बीजापुर के अंदर ये पायलट बनेगी, हम तो कभी सोचे नहीं थे। बस कैरी ऑन, आप पढ़ाते रहो, सिखाते रहो, वो अपने आप में उस रास्ता मिल जाएगा। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूरजहान मेरा नाम है। मैं रिटायर्ड पोस्ट में सर्विस करती थी। मेरा एक ख्वाब था, मेरे बेटे को मैं बनाना, वो ख्वाब से मैं कारवार में रहती थी। कारवार से बीजापुर आने का मेन मकसद ही मेरा सैन स्कूल था। वो बेटा मेरा अपनी बेटी को करके दिखाया, बहुत खुश हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। पहले तो ना बोले हमें, लेडीज को नहीं होता, नहीं जमता। बाद उन्हें उसका बहुत ही जो है, उसकी मम्मी भी बहुत ही करने लगने को, अच्छा बनो, उसमें क्या है। हमारे में लड़का लड़की हमें कभी डिफरेंशिएट करे नहीं। हम बचपन से भी हमें हमारे घर में पहले पढ़े तो भी हमारे माँ बाप भी नहीं करे, हम ना सब भी पढ़ाए, हमें सब पढ़े, हमारे घर में सब ले एजुकेशन है, सब जॉब करते थे। 8 बच्चे हमें, हमारा बाप भी पोस्टमैन था। हम ना लड़का लड़की में फर्क क्या भी नहीं, उनका कैपेसिटी से उन्होंने क्या क्या करते हैं। अब तुम एक एग्जांपल बोले, तुम्हारे बहुत खानदान में लड़का ले डिफरेंशिएट करते नहीं, बट अभी भी चंद घरा में लड़की का तो अलग नजर देखती, लड़के अलग बोल नहीं गया, वो जमाना गया। अभी नहीं करते, कौन भी नहीं करते। अभी लड़कियां आगे, लड़के कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी लड़के नहीं पढ़ रहे, ज्यादातर लड़कियां पढ़ रही। अब लड़कियां को लड़के ढूंढने का मुश्किल है अभी। क्या लगता है? दोनों की सुनना देखना, दोनों का भी देखना, उन्होंने भी करते हैं नहीं, उनका भी मेंटल लेवल हमने मालूम पड़ता नहीं, बचपन से हमारे पास आती रहते हैं, उन्होंने समझता हमने भी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो देखो बोलना, वैसा स्ट्रिक्ट कर लेते बेटे तो क्या भी नहीं होता। आपका एक ड्रीम था अपने बेटे को, हाँ, मेरा एनडीए। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी, क्या रोना चाह रहा मुझे तो इतना खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ಸಮೈರಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಪೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಪೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮೈರಾಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಭಾಷ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೈರಾಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮೈರಾ ಕುಟುಂಬ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಮೈರಾ ಸಾಧನೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.